Good morning, students. Today we are doing worksheet number 33 for the date 18 September 2020, class 10 science, and the chapter which is going on is metals and non-metals, and the topic today we are discussing about the reaction of metals with acids. So first of all we have to write this equation. Okay, see, metal plus dilute acid gives salt and hydrogen. If a metal when reacts with a dilute acid, then it will produce a salt which will be from the metal or from the acid also, and it give hydrogen gas. Hydrogen will be a gas and it will be released. Metals react with acids to give a salt and hydrogen gas. For example, सोडियम का हमने एग्जाम्पल लिया है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे गिव sodium chloride. Okay, sodium chloride which is a common salt. ठीक है, we use it in daily life. Common salt NaCl and hydrogen gas will be released. Now second example is zinc plus hydrochloric acid, and it will give zinc chloride, that is the salt of zinc and hydrogen chloride, and hydrogen gas will also be released in this reaction also. Now we are seeing this picture. Copper does not react with dilute hydrochloric acid. Why so? Because copper is not that much reactive. Okay, we will find it in the worksheet also and we'll discuss in details. So इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम जिंक react with hydrochloric acid but no reaction with copper. So copper will not react with hydrochloric acid. Now secondly we are discuss hydrogen gas is not evolved. Hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid. If this reaction will be carried out with the nitric acid, that is HNO3. Okay, so जब HNO3 के साथ में कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा देन दिस हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी रिलीज्ड. ये नहीं होगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना बच्चों, उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है. और ऑक्सीडाइज होना इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन गैस विल give water. Okay, so water will be obtained. That's why hydrogen gas will not be released in these kind of reactions where HNO3 will be reacted with the metals. Okay, it oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides, और वो खुद से reduce होगा किसी भी oxide में, या वो N2O बनेगा, NO बनेगा या NO2 बनेगा. But इन द केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये सब नहीं होता. HNO3 के साथ में कोई भी मेटल जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता क्योंकि वो वाटर ही बन जाता है उसमें. लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज Mg एंड Mn इन दोनों के केस में क्या होता है, HNO3 के साथ ही रिएक्शन होगा तो ये बनाएंगे सॉल्ट. ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैंगनीज नाइट्रेट बना रहे हैं, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन गैस ज़रूर रिलीज होती है. तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है और कितना नहीं, वो आप यहाँ से देखेंगे. आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ दिया हुआ है, एंड दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज़ द लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, नाउ हियर वी विल गेट मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, एंड नीचे जो होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे, एंड रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन. ओके, if we talk about this reactivity series, I will give you a trick to learn it thoroughly and you will not forget it. So here you will find a picture. Here, yes, for potassium we are using the word Kedar because its symbol is K, and for sodium we are using Nath. Ca इस कैल्शियम का, एंड मैग्नीशियम का M है तो माली लिया है, एल्यूमिनियम के लिए आलू लिया है, जिंक ज से ये शुरू होता है, यानी कि इसको हिंदी में भी हम जस्ता बोलते हैं, तो ज से जरा लिया है. Fe आयरन होता है तो Fe से हमने लिया फीके. Pb यानी कि प्लम्बम, यानी कि ये यहाँ आप जो है ना इसको करेक्ट करिएगा. प्लम्बम मैंने साइंटिफिक नेम लिखा है, ये लेड होता है जो हम इसका कॉमन नेम यूज़ करते हैं, लेड प्लम्बम, और इसका जो सिंबल होता है वो Pb होता है, इसीलिए वहाँ लिख दिया है पकाता. ओके, आगे चलें. उसके बाद है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्यों लिया है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ तुलना करने के लिए काम आता है, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए काम आता है, जो हाईएस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव हैं और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके बीच. फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कॉपर. कॉपर के लिए कुछ नमक लिया है. मरकरी जो होता है, मरकरी का आता है साइंटिफिक नेम हाइड्रोगेरम, उसी से उसका सिंबल लिया गया है Hg, और हमने वर्ड लिया है हींग.
Ag यानी कि अर्जेंटम होता है सिल्वर, उसके लिए हमने यूज़ किया है अजवाइन। और Au यानी कि ऑरम गोल्ड होता है, इसके लिए हमने यूज़ किया है Au यानी कि और पड़ते। अब जो सेंटेंस हमारा बनता है जिसे हमें याद रखना है वो बनेगा, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ नमक हींग अजवाइन और पड़ते। तो ये सेंटेंस आई होप आपको याद रहेगा। और एक्टिविटी सीरीज़ में कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, नहीं याद रहता है लेकिन सेंटेंस याद रहता है। आप ये मैनेमोनिक्स बोलते हैं इनको, और ये इजीली याद हो सकते हैं, तो आप इन्हें याद कीजिए। और ऊपर जो आपको पता है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और नीचे जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमको लर्न हो गई है, और अब हम इजीली बता सकते हैं कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। Next, we are talking about reaction of metals with the solution of other metal salts. अब हमने बात करनी है, अभी तक तो हम कर रहे थे कि मेटल्स का एसिड्स के साथ में रिएक्शन। अब एसिड्स के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल अपना सॉल्ट बना लेता है। अब वो जो मेटल का सॉल्ट बना है, उस मेटल के सॉल्ट को मैंने किसी और मेटल के साथ में रिएक्ट करवाना है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हो मेटल ए और मेटल बी लेना है। मेटल बी का हमने क्या लिया है, उसके सोल्ट का सोल्यूशन लिया है। मेटल बी के सोल्ट का सोल्यूशन लिया है। और मेटल ए, हमने सिंपली मेटल ए लिया, उन दोनों का रिएक्शन करवाया, तो हुआ क्या कि जो मेटल ए था ना, इसने क्या किया, मेटल बी को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बन गया। और मेटल बी जो था वो इस सॉल्ट सोल्यूशन से बाहर निकल गया एकदम अकेला। ठीक है, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन दिया है आपको Fe, यहाँ आप देखोगे आयरन, आयरन दिया है और कॉपर सल्फेट दिया है। कॉपर सल्फेट यानी कि हमने कॉपर का सॉल्ट लिया है और उसका सोल्यूशन बना लिया, क्योंकि यहाँ एक्वस लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट वी आर टेकिंग द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्ट को रिएक्शन किया हमने आयरन के साथ। आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और यहाँ खुदा कर गया, और यहाँ हमें मिला कि FeSO4 हुआ और कॉपर जो है वो बिल्कुल अलग मिल गया। ठीक है बच्चों, और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जो कि दिया हुआ है कॉपर, कॉपर का रिएक्शन हुआ एक अर्जेंटम यानी कि सिल्वर के सॉल्ट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट इन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा कि कॉपर ने इसकी जगह ले ली, खुद आ गया, और Ag की जगह वो कॉपर रखा गया, कॉपर NO3 एंड 2 Ag। ठीक है, यानी कि सिल्वर आ गया यहाँ पे बाहर। तो यहाँ आपको पता चला कि जो ऑल मेटल्स हैं वो इक्वली रिएक्ट नहीं करते। इफ़ वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, वी विल फाइंड ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट्स। तो हर एक मेटल जो है वो अपने अपने हिसाब से ही, अपनी अपनी रिएक्टिविटी के अनुसार ही रिएक्ट करता है। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि जब हम जब आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट की जगह बनता है आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, जैसे ही ब्लू कलर का सोल्यूशन दिखे तो आप समझिए कि ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ज़रूर हो सकता है। तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में यहाँ हमने एक कील यानी कि एक आयरन नेल को हमने डिप कर दिया है। थोड़ी देर के बाद जब इनका रिएक्शन होगा तो ये जो आयरन है वो क्या करना शुरू कर देगा, वो इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से जो कॉपर के मॉलिक्यूल हैं उनकी जगह अपनी जगह बनाएगा, और सल्फेट के साथ में खुद उसके साथ दोस्ती कर लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। कॉपर जो होगा, अगर वो इस सोल्यूशन में से कॉपर निकल गया तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, यहाँ फेरस सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट की बजाय अब फेरस सल्फेट दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज हम कर चुके हैं। अगला पार्ट जो है वो वर्कशीट का, वो आपके क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी इजी हैं, करते हैं इन्हें। कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो कहता है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल एंड राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है किसी भी मेटल का, किसी रिएक्टिव मेटल का, तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। सो फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। Okay, now the reaction, about the reaction we have to go for our board. तो चलते हैं बोर्ड पर। So here we will do the reaction. यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जिंक मिलता है हमको, जिंक के साथ हमने रिएक्शन करना है। तो Zn यानी कि हमारा जिंक हो गया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ये रिएक्शन करके आपको पता है कि Zn जो है वो क्लोरीन के साथ अपना क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन जो है वो अलग बाहर आएगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज होगा। तो ये सॉल्ट बना हमारा ZnCl2। ओके, और उसके बाद हमारी हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड।
ये हमारी रिएक्शन रहेगी. फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड in the reaction of hydrochloric acid and reactive metal. And secondly, we have to write the chemical equation, chemical reaction of zinc and hydrochloric acid. ओके तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन द कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. ये अभी हमने वर्कशीट में भी डिस्कस किया था कि जब कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ होगा तो क्या होगा. ठीक है, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3. तो कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो रिएक्ट ज़रूर करेगा और यहाँ अपना सॉल्ट बनाएगा CuNO3 प्लस सिल्वर. ओके तो ये रिएक्शन रहेगा. हेयर आपको बताना भी था कि क्या होता है, तो आप रिएक्शन भी देंगे और साथ ही साथ आप लिख देंगे कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर इन द रिएक्शन. ओके नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पोट. एक आयरन पोट में अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखेंगे तो होगा क्या. हेयर आल्सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस जरूर करेगा. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज होता क्या है, द आयरन पोट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट. आयरन के पोट में बहुत सारे होल्स हो गए. अब ये आयरन कहाँ गया भाई, जो हमारा पोट था उसमें से आयरन यूज़ हुआ है तभी तो वहाँ छेद हुए हैं. तो वो आयरन कहाँ चला गया, वो आयरन तो भाई कॉपर सल्फेट की दोस्ती तोड़ने के लिए चला गया. उसमें कॉपर और सल्फेट के बीच में दीवार खड़ी करी और वो खुद यहाँ पे टिक गया और कॉपर को आउट कर दिया. ठीक है, यहाँ बन गया फिर हमारा फेरस सल्फेट. अब फेरस सल्फेट बन गया तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. तो रिएक्शन लिखते हैं. तो हमने लिया था आयरन लिया और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया. ये आप रिएक्शन पूरी लिखेंगे, यहाँ एक्वस लिखेंगे कि हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रहे हैं. तो कॉपर को रिप्लेस कर दिया आयरन ने, क्योंकि आयरन इज क्वाइट रिएक्टिव देन द कॉपर. यहाँ फेरस सल्फेट बना, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन गैस क्यों बनेगी यहाँ पे, हमें हाइड्रोजन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, हम एसिड के साथ थोड़ी रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों. तो यहाँ होगा हमारा कॉपर, क्योंकि यहाँ कॉपर बचा है. ठीक है, तो अब आंसर करना था कि ये आयरन गया कहाँ. तो आयरन विल बी यूज्ड इन द रिएक्शन where it will displace copper from the copper sulfate solution and will take place. Okay, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको एक टेबल दी हुई है. उस टेबल में ABCD ये चारों जो हैं आपको मेटल्स दिए हुए हैं और इन मेटल्स की रिएक्टिविटी दी है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ. अब एक एक करके बात करें तो ए मेटल जो है वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा आयरन सल्फेट के साथ, यानी कि वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है. और कॉपर सल्फेट के साथ वो कर लेता है, कॉपर सल्फेट को वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है. कॉपर को डिस्प्लेस करता है तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. बी की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन के साथ करता है, तो वो आयरन के साथ करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन जो है आयरन से वो ज़्यादा रिएक्टिव है. इसी तरीके से सी जो है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है सिर्फ और सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट के साथ. अब अगर वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट करता है तो वो सिल्वर से ही रिएक्टिव है, बाकी और रिएक्शंस में वो रिएक्टिव है ही नहीं, तो वो बहुत कम रिएक्टिव है. और डी जो है वो तो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा. तो अगर मैं इसकी सीरीज़ बनाऊँ तो मुझे मिलेगा कि डी जो है वो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है, उसने किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं किया हुआ. उसके पहले फिर आएगा सी, क्योंकि सी ने सिर्फ सिल्वर को ही रिएक्ट कर सकता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ही उसने रिएक्शन किया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया. तो ये सी जो है वो डी से पहले ही आने वाला है. ऑफकोर्स यहाँ बी और ए की बात होगी तो बी और ए में से मुझे ज़्यादा रिएक्टिव कौन लग रहा है. यस, ए जो है वो उसके कम रिएक्टिव है, बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, क्योंकि बी जो है वो आयरन को भी डिस्प्लेस करने की हिम्मत रखता है, तो वो ऑफकोर्स वो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है. तो ये रही बात इस सीरीज़ की. सीरीज़ को याद रखिएगा, BACD ये हम बना लेंगे पहले रफ में और इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस कर लेंगे अपने सारे. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है बच्चों, वो है बी. बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव. ओके, ये आंसर लिखिए पूरा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट जो होगा इसका, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज द एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. अगर वो आयरन को डिस्प्लेस करता है वो कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा. तो यहाँ आप रिएक्शन लिख देंगे सेकेंड पार्ट के लिए. हमने बी लिया और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, हमको मिलेगा कि बी जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर गया. यहाँ बन जाएगा BSO4. ठीक है, और कॉपर हमें एक्स्ट्रा में बाहर निकल जाएगा. वो समझ आया. तो हेयर आपको आंसर में केमिकल रिएक्शन तो लिखनी है, साथ में आप लिखेंगे कि बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. थर्ड इज अरेंज द मेटल्स ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. तो रिएक्टिविटी के अनुसार इनका आपने ऑर्डर बनाना है डिक्रीजिंग में.
तो सबसे पहले आ जाएगा कौन, बी आ जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी है। उसके बाद ए आ जाता है, ए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। बी जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ए है, फिर है सी, और फिर लास्ट में आएगा डी। डी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे आपके डाउट्स। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई सजेशन है आपका तो वो भी आप बता दीजिए। चलते हैं और आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वर्कशीट में।